So I think that was one of the mistakes we made. Deep Kalra, who's the founder of Make My Trip, is an amazing person, and it was lovely working with him. So मैं 2 बारी गलती की, वैल्यूएशन के पीछे भागा और दोनों बारी गलती हुई और दुनिया ने दिखा दिया मेरे को ये गलत डिसीजन था. फॉलोइंग ट्रेंड्स लाइक एडटेक का ट्रेंड आता है, एआई का ट्रेंड आता है, वेब3 का ट्रेंड आता है, फिटटेक का ट्रेंड आता है और उसका स्टार्टअप बना के और आप फंडिंग ले रहे हो, वो ट्रेंड नहीं अच्छा. अब हम इस पॉडकास्ट को थोड़ा एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली रखेंगे, मतलब कि हमारे जनरेशन को आप जैसे गाइड कर रहे हैं उसी तरीके से हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस रखेंगे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए. तो सर, बिफोर यू बिकेम द फेस बिहाइंड द स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबलर, तो उससे पहले वरुण चावला कौन था? मतलब टेल अस अ बिट अबाउट द प्री फाउंडर वरुण चावला. Pre-founder. So when I was still in the corporate world, okay. So I of course did my schooling in Delhi, a school called Binda Vidyaniketa, and I was a science student. Lucky enough, I came from a middle class Punjabi background where my family was nice enough to say, hey, if you want to pursue your education overseas, they can support with that. So I ended up going to Cornell University for my further studies in the US. And it started with studying of electrical engineering, which was the computer engineering of those days. But after 3 semesters, I realized that I enjoy using computers, not making them. So I ended up switching to applied economics and management, which is really fancy for business or common sense. So I did that, and after that, ended up again, as I said, middle class Punjabi, wanted to get money because I wanted things. So I looked at what were the highest paying jobs out of college, and that ended up being investment banking was one of the big ones. So I applied to that industry, got a role in equity research, which is basically overpaid journalists that can do maths. So I got into that and writing these reports on which stock to buy, which not, why, what will be the price of the stock, what is the price today, upar jayega, niche jayega, that sort of thing. So that was the equity research role at Goldman Sachs I took up. So this was me. सर, तो 91 स्प्रिंग बोर्ड जो था उसका आइडिया कैसे आया था? वो मतलब वो सोल्यूशन आपने वो सोचा, मतलब क्या आपका फील था उसके पीछे? तो 91 Springboard was my 7th startup था. So यानी कि 6 बारी पंट मार चुका था उससे पहले. So all of the learnings from all of those startups, I said अब कुछ आ गया है मेरे को जो मैं लोगों को दे सकता हूँ. I wanted to share whatever I had learned. I said I've learned the hard way. It's taken me 7-8 years to learn this. Can I give this as a gift to other entrepreneurs? This was my thought. So 91 Springboard started as more an accelerator, like a Y Combinator or a 500 startups, where we wanted to create these workspaces where we would help people build their startups. So तुम वहाँ आओगे, तुम्हें co-founder मिलेगा, investor मिलेगा, mentor मिलेगा, vendor मिलेगा, तुम्हारी networking होएगी. Just it's a healthy ecosystem to build your startup, right? So we had started with that, and we would also give funding. And so conceptually, this was the idea because now I'd done 6 startups, and I thought I could give enough gyan. So it turns out we were still good at creating an ecosystem, still good at giving some gyan, but what we were not good at was getting funding. So unlike Y Combinator or 500 startups, we didn't become a funding organization, but we became a co-working community where founders could come and network and learn and grow their startups. So that's what 91 Springboard became, and the inspiration was to help founders in their journey. That was what I realized. मेरे को मजा आता है लोगों को हेल्प करने में, लोगों की सेवा करने में, and entrepreneurs are my people. या ओके, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दिमाग में इस चीज़ को सुन के. पहले चीज़ की, जब 6 स्टार्टअप आपने किए तो उसमें से सक्सेसफुल कितने थे? सेकेंडरी, आपने ये कोवर्किंग स्पेस बनाया था, तो कोवर्किंग स्पेस आपका कोविड जो इम्पैक्ट आया था पैंडेमिक के टाइम पे कैसा चल रहा था? ये 2 सवाल आ रहे हैं दिमाग में अभी. बढ़िया. सो सक्सेस का मतलब अलग अलग होता है अलग लोगों के लिए. कईयों के लिए होता है पैसा, कईयों के लिए होता है नाम, कईयों के लिए होता है सीख, कईयों के लिए होता है वेल सर्व्ड क्लाइंट्स. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज आवर लेंस वी कैन डिसाइड सक्सेस.
for me, these 6, 5 of them to made maybe single digit lakh rupees, not a lot of money, but they taught me a lot. You know, how to do business, how to find co-founders, how to do marketing, how to maintain my costs, what's the type of work I like, what do I not like, what am I good at, what am I not good at, how do you collaborate with other people to do something bigger. You know, all of these things I learned. This 5th one was a startup in the travel technology space, which we sold to Make My Trip. So नाम का वो successful sound करता है, but आधी कुछ गलती करी हमने, where we thought it would be best for our startup My Guest House to partner with Make My Trip, and so we sold to Make My Trip with the intention together the journey will be better. But I think we had misunderstood what would be the best partnership for us to go forward. We should have actually stayed agnostic and not got to partner with any platform, because we were bringing supply of budget properties. एंड बजट प्रॉपर्टीज का सप्लाई अगर हम मैक्सिमाइज डिमांड कर सकते थे, यानी कि मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप, Booking.com, एक्सपीडिया, सबका डिमांड हमें इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ गेटिंग पार्टनर्ड विद वन. सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक्स वी मेड. Deep Kalra, who's the founder of Make My Trip, is an amazing person, and it was lovely working with him. If I could do that again, I would do something differently. So these are my 6. As you can see, I always learned something. Okay. And the 7th one was, of course, 91 Springboard, which has served now tens of thousands of startups and companies, and is doing well on a revenue and profit basis also. So touch wood, that's done well. Your next question was around, in COVID, how did 91 Springboard do? Right. So it was actually a very difficult time for us, right? Like just before COVID, we had expanded about 80%. 2020, and उसमें से like maybe 11-12 were old locations, तो यानी काफी कुछ भर चुके थे, and they were at break even or better. But 7-8 ऐसे लोकेशन थे जो नए थे, और नए लोकेशन में क्या होता है, पहले you lose money until वो about 60% occupancy पे पहुंचते हैं, then you start to make money. So the idea was कि इस साल हम ये नए लोकेशंस को भरेंगे और पुरानी लोकेशंस तो अब प्रॉफिट जोन में है, so they'll start to give. But COVID में क्या, different plans. As you know, first few months तो it was illegal only for people to meet. 4 से ज्यादा लोग एक जगह में आना अलाउड ही नहीं था. तो मतलब हमारा बिजनेस ही था. तो it was challenging in terms of जो अपना रेवेन्यू अभी तक आ रहा था वो भी 0 हो गया, और जो आने का प्लान था वो डिले हो गया. तो पूरा कुल मिलाकर अगर बोलो तो कुछ 18 to 24 month डिले आया to the business plan. Oh my. And we had to go from जो आ रहा था और कुछ एक्स्ट्रा आएगा to a mentality कुछ नहीं आ रहा है, सर्वाइव कैसे करना है, मिनिमम पैसा खर्च कर सर्वाइव कैसे करना. तो एम्प्लॉय से बात करके भी आपके साथ कुछ कम दे सकते हैं टीम मेंबर्स को, फिर लैंडलॉर्ड्स के साथ ही रेंटल में कुछ रिडक्शन हो सकता है या कुछ माफ़ी हो सकती है. इन्वेस्टर्स के साथ बातें की कि कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हो आप अभी इस मुश्किल टाइम में हमें सर्वाइव करने के लिए. तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई, बहुत सारे जुगाड़ हुए, और कुल मिला के फिर वो 6-8 महीने में कुछ पैसा उठाया, कुछ रिडक्शन लिया, कुछ एम्प्लॉयज़ ने रिड्यूस सैलरीज ली, कुछ हमारे क्लाइंट्स ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी. कुल मिला के ये सब कर के somehow we survived. But it really took, I would say, good 2.5 years before we fully recovered. And now we can say we fully recovered. Like, business is doing quite good, touch wood, and it continues to grow at a very good rate of 40-45% per year. And it has a 30% EBITDA margin. It has a 300 crore revenue also. So it's a good business. ओके सर, दो चीज़ें पूछनी है. जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं Sure. आज के टाइम पे, आपको पता है ये शार्क टैंक इज क्वाइट पॉपुलर, राइट? सो आज के टाइम पे जो एंटरप्रेन्योर्स मैंने देखा है कि फोकस करते हैं वैल्यूएशन पे ओवर वैल्यूएशन ओवर वैल्यू प्रेफर करते हैं. तो वो सही मैट्रिक्स फेस चूज कर रहे हैं या वो गलत चूज कर रहे हैं? क्योंकि जनरली कंफ्यूजन होता है जो न्यू स्टार्टअप भी शुरू करते हैं उनको. आपने इतना ट्रेन किया, आपको तो मेरे से ज़्यादा ही पता है. तो कंफ्यूजन रहता है कि हमें वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, वैल्यूएशन के पीछे भागना है. उस केस पे आप थोड़ा सा मतलब लाइट करिए हमें. इससे मैं 2 बारी गलती की, वैल्यूएशन के पीछे भागा और दोनों बारी गलती हुई और दुनिया ने दिखा दिया मेरे को ये गलत डिसीजन था.
सो वैल्यूएशन तो मैं अच्छा खासा सीख चुका हूँ, इज नॉट द प्रायोरिटी। किसके साथ काम करना है, किस लेवल का पार्टनर हो सकता है, क्या सपोर्ट मिलेगी उससे, पैसों के अलावा उस किस्म का पार्टनर ढूंढना ज्यादा जरूरी है वर्सेस वैल्यूएशन के पीछे जाते। क्योंकि देखो आपका प्री सीड, सीड, सीरीज ए, बी, सी, आईपीओ, शायद M&A, ये कई राउंड्स होते हैं। हर राउंड को परफेक्ट करना इम्पॉसिबल है। और अगर आप वैल्यू क्रिएट करते रहोगे अपने कस्टमर्स के लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए, कोई और स्टेक होल्डर्स है उनके लिए, तो क्या होता है कि वो शायद एक राउंड ऊपर हो गया, एक राउंड नीचे हो गया, मगर कुल मिला के जो 5-6 राउंड होएगा ना, नेट आप पॉजिटिव राउंड, अच्छा आउटकम रहेगा। अच्छे लोगों के साथ काम करो, अच्छा काम करो, वैल्यू प्रोवाइड करो सबको, ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन पर अच्छा आ जाता है। उसके बाद कई बार थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यस, मगर नेट अच्छा रहता है, ये मैंने देखा है। तो डेफिनेटली डोंट चेज वैल्यूएशन, चेज वैल्यू। वैल्यूएशन विल ऑटोमेटिकली कम इफ यू डिलीवर गुड वैल्यू। ओके सर, अभी जैसे जो कोवर्किंग स्पेस है वो तो मतलब आपके और बाकी सबका भी जो है अब मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, वर्चुअली लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे आज के टाइम पे भी एक वर्चुअल डोमिनेंट वर्ल्ड है और एक फिजिकल कम्युनिटी है, ठीक है, और इनोवेशन के लिए दोनों ही ज़रूरी है, पर लोग जनरली मिसकंसेप्ट करते हैं कि वर्चुअल कम्युनिटी, क्योंकि वर्चुअल इज़ अ ट्रेंड राइट नाउ। तो मेरा सवाल है कि आप वर्चुअल और फिजिकल में दोनों में से मतलब दोनों की एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, तो किस तरीके से हम उसको देखें जब कोवर्किंग कम्युनिटी की बात करते हैं। जैसे 91 स्प्रिंग बोर्ड हो गया, तो बिल्डिंग कम्युनिटीज़ में हमने देखा होगा, आपने फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीके से काम किया होगा, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? तो मतलब अलग लोगों को अलग होता है। आपकी जनरेशन को फर्क है, मेरी जनरेशन को फर्क है। हम तो ग्रो अप किए थे फिजिकल एनवायरनमेंट्स में, तो हमारी आदत उसकी है। हम वर्चुअल कुछ सीख गए हैं, मगर हमारा कंफर्ट जोन पूछो तो आई थिंक वो फिजिकल में रहता है। आई थिंक आपकी जनरेशन ग्रो अप ही हुई है डिजिटल एनवायरनमेंट में, तो ज्यादा कंफर्टेबल है। बट आई थिंक बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारी जेनेटिक्स में ही है कि हम फिजिकल बीइंग्स हैं, हमारा ऑफलाइन नेचर है, तो आई थिंक वो निकाल नहीं सकते। जरूर ये कह सकते हैं कि आपकी जनरेशन शायद लेस डिपेंडेंट है ऑफलाइन पर, और हमारी जनरेशन ज्यादा, क्योंकि वो हमारी अपब्रिंगिंग थी। राइट। मगर एज ह्यूमंस वी ऑल नीड सम ऑफलाइन, इट्स लाइक वी ऑल नीड हग्स, you know, we all need to go out for a jog in the fresh air in green grass. We all like mountains, or we all like beaches. Like ये क्यों है? ये virtual नहीं आता ये, right? ये तो सब हमारे में as humans हम सब में है this appreciation, this joy for being in physical environments, and some of that is with people also in physical environments, right? Like जो bonding होती है, जो बातचीत होती है, जो connection होता है, जो vulnerability होती है, जो काइंडनेस होता है, वो ऑफलाइन ही मैंने देखा एक एक्स्ट्रा लेवल का होता है। इवन फुल्ली वर्चुअल फर्म्स जो फुल रिमोट हो गई है, दे रियलाइज हर 2 से 3 महीने टीम को साथ में लाना पड़ता है, बॉन्डिंग करते हैं और फिर वर्चुअल वापस जाते हैं। दैट इज द ओनली वे टू मेक फुल रिमोट टीम्स वर्क। राइट। सो that offline element is important. Now how you bring it in is different. So if you have a virtual community, they probably meet once in a while offline to build some bonds. So you can carry on that energy virtually, but you have to keep renewing it physically is my belief. Okay, understand. And so a community like 91 Springboard, which is primarily physical, you know, people work together, people eat together, people play cricket together, people go to sessions together, people go out after work together. There's a lot more physical. Community like Build 3, which is a lot more virtual, you know, we keep bringing people together every 1, 2, 3 months. We said, आ जाओ, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, साथ में बैठते हैं, उसमें रिलेशनशिप बनेगा, फिर वर्चुअल कैरी ऑन करते रहेंगे ये बातें, पर फिजिकल में डीप जाएंगे और वर्चुअल में कैरी ऑन करते रहेंगे। अंडरस्टूड सर। सो दे बोथ वर्क इन डिफरेंट वेज। एक छोटा सा राउंड हमने रखा है, क्योंकि हमारे पास 3 मिनट बचे हैं। आई विल फ्री यू इन 3 मिनट्स, ठीक है? तो बोलेला, तो छोटा सा राउंड है रैपिड फायर का। 5 सेकंड से लेस में आपको, या दैट्स इट। आपकी तो मेरे ज्यादा है। ओके, सो टी और कॉफी? नाइदर, पानी। ठीक है। वन बुक एवरी फाउंडर शुड रीड? These days, The Almanac of Naval Ravikant. Okay. Work from home or co-working at office? Co-working at office. Okay. Founder you have invested in blindly? And Abhimanyu Raki of Red Ukraine.
Okay, okay. A startup trend you are secretly tired of. फॉलोइंग ट्रेंड्स हाँ. लाइक एडटेक का ट्रेंड आता है, एआई का ट्रेंड आता है, वेब3 का ट्रेंड आता है, फिफ्टेक का ट्रेंड आता है, और उसका स्टार्टअप बना के और आप फंडिंग ले रहे हो, वो ट्रेंड नहीं अच्छा. ठीक है. First big rejection you still remember. In college, I had applied for a post of senior technical manager, and I was rejected for that because they said, "तुम अपने करियर का देख रहे हो, तुम कम्युनिटी का बेनिफिट नहीं देख रहे हो." Okay, okay. One city you would prefer to retire in. गोवा ही बढ़िया है यार, मैं गोवा पे वो वही अच्छा. Okay. तो स्टेट है बंग स्टेट. Sir, Ratan Tata in one word, sir. Sir, Ratan Tata, a man of values, a man of principles, a person who puts high quality products, high quality service, and the growth of the nation in front of personal. Great. Sir, okay. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दो लास्ट सवाल. पहला, आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? आपके मेरे हिसाब से सक्सेस है अगर आप हेल्थी हो, आप हैप्पी हो, आपके आसपास के लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और आपने कुछ अपने टाइम से योगदान दिया जिससे कम्युनिटी बेहतर हुई. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, सर, अगर जो नए, अगर कोई स्टार्टअप, ये वीडियो पर्टिकुलरली कोई स्टार्टअप या कोई फाउंडर देख रहा है जो भी स्टार्ट कर रहा है और वो आपसे जुड़ना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? मतलब आपसे मेंटोरशिप कैसे सीख कर सकते हैं, आपको अप्रोच कैसे कर सकते हैं? ये आखिरी सवाल है ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है. ब्रिलियंट. तो ये क्वेश्चन बहुत आता था, हमने प्रोग्राम ही बना दिया इसका. इसको बोलते हैं बिल्ड 3 इम्पैक्ट एक्सेलरेटर. ये हम हर क्वार्टर में रन करते हैं. 60 से 80 फाउंडर, कभी कभी उससे भी ज़्यादा ज्वाइन करते हैं, और हम साथ में मिलके स्टार्टअप बनाते हैं. सो उसमें ऐसे मेंटरशिप मिलता है, उससे पूरी कम्युनिटी से कनेक्शंस बनते हैं, इन्वेस्टर्स, वेंटर्स, को फाउंडर्स, और कुछ बेस्ट स्टार्टअप्स को हमसे थोड़ा कैश भी मिल जाता है, और हम फाइनेंशियल पार्टनरशिप भी करते हैं. तो दिस इज द बेस्ट वे फॉर अ स्टार्टअप और अ फाउंडर टू engage with us, to talk with us, for us to learn from them to learn to us. This is the best way. Thank you, Varun sir. Thank you very much for being here today. This was an honest insight. और कभी ऐसा होगा कि एक बार और आपके साथ चर्चा होगी, जब भी हम आगे करेंगे, जब भी आपको समय. बिल्कुल करेंगे. और सर, अगली बार ये पॉडकास्ट मैं गोवा में करूंगा आपके साथ. बहुत बढ़िया. ऑफलाइन. अच्छा था. ऑफलाइन करेंगे. 100%. ठीक. बिल्कुल करेंगे. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू सर. थैंक यू. Bye bye. बाय.